Welcome, my dear students, to the social science lecture. Today, in this lecture, we are going to start with the chapter number 5th, that is the precipitation. Before we start with the lecture, we will understand the meaning of the precipitation. What does the word precipitation means? In basic sense, precipitations means rain or the snowfall. It means whenever the cloud brings the rain or the cloud is converted into the snow, and that process it is known as the precipitations. Means the whole process, the water cycle which you studied in the previous classes, like the 8th standard, 7th standard or 6th standard, when you have studied the water cycle, in that the last stage when the clouds is bringing the rain, that is known as the precipitation. So the whole chapter is about the precipitation process. After the completing the process, we will answer these questions of the page number 41. So now we will move to the explanation part. Geographical explanation. 70.8% part of the earth's surface is full of water. The distribution of the water is very uneven. At some places the water storage is limited while it is an ample at the other places. We experience the different forms of condensations as shows in the picture above in the figure 5.1. This form of condensation occurs due to the water vapors in the atmosphere. These forms of condensation occur due to the water vapor in the atmosphere. As the atmospheric condition changes, we see the changes in the form of condensation. On winter morning, we find out dew. In the areas located at the higher altitude, snowfall occurs, while it rains at the other places. Some places experience dense fog, while some of the places experience the hailstones suddenly and the face crop destructions. तो इसका मतलब जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमारे अर्थ बेसिक नॉलेज ऑफ द अर्थ इज दैट इट इज कवर मोस्टली बाय द water, that is more than 70%, yani around 70.8% earth is covered with the water, and remaining part is a land surface. But the distribution is so uneven. मतलब ये होता है कि हमारे ज़मीन पे पानी सब जगह एक जैसा नहीं, कहीं पे वाटर स्टोरेज है तो कहीं पे एम्पल मतलब एक्सेस वाटर सर्विसेज अवेलेबल वहाँ पे है. ये रीज़न क्या है? अर्थ के फिजियोग्राफी की वजह से, फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है उसके कारण यहाँ पे क्या होता है डिफरेंसेस. कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे बारिश होती ही नहीं है, और कहीं पे क्या होता है स्नोफॉल होता है बिकॉज ऑफ द हायर एल्टीट्यूड वहाँ पे स्नोफॉल आती है. या फिर एक एग्जाम्पल है बर्फीला इलाका है, ठंडा इलाका है, इसके लिए वहाँ पे क्या होती है स्नोफॉल. और कहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा, जहाँ पे माउंटेन्स है, ये सब ग्रीनी एरिया है, वहाँ पे क्या होती है बारिश ज़्यादा. एंड जहाँ पे डेजर्टिक एरिया रहेगा या फिर कोई ट्रीज जल्दी वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा तो वहाँ पे बारिश होती नहीं है. इसका मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस भी सब जगह के लिए सेम होगा नहीं. कहीं पे सॉलिड होगा तो कहीं पे लिक्विड होगा, और कहीं पे हेल स्टॉर्म यानी फॉग जैसा एरिया आता है, गैसेस फॉर्म में हमको वहाँ पे देखने मिलता है. वाटर फॉल्स इन द सॉलिड और द लिक्विड स्टेट फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड. स्नो, हेल स्टॉर्म्स एंड रेनफॉल आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन एज यू कैन सी इन द पिक्चर 5.1. ये जो 5.1 की जो पिक्चर्स दी गई है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये देख रहे हो आप, व्हाइट कलर के आप जो ओले जैसे दिख रही है, ओले गिरते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं स्नोफॉल. और ये साइड में अगर देखेंगे फर्स्ट पिक्चर जहाँ पे जो एक लेडी और काऊ आ रहे हैं, वो पिक्चर आपका रेनफॉल है. उसके बाद ये थर्ड पिक्चर जहाँ पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिख रही है, फॉग है. ऊपर आप जब इमेज देखेंगे वहाँ पे स्नोफॉल है. तो ये अलग अलग इमेज से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन के जो फॉर्मेट्स है वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट रीजन के हिसाब से. सो इट mainly occurs in the type of snowfall, hailstorms, rainfall. So ये 3 मेजर तरीके हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो सकता है. आप एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट वन को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्नोफॉल क्या होता है. देखो बेसिकली आप मुंबई में रहते हो या फिर आप कहीं पे यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान ये साइड में रहते हो तो आपने कभी स्नोफॉल इमेजिन नहीं किया रहेगा. लेकिन आप अगर कभी कभार देखें एकदम ज़्यादा विंटर हो और उस टाइम की जो बारिश होती है उसके अंदर आप कभी कभार देखते हो कि आपको ओले यानी बर्फ़ के गोले जैसे छोटे छोटे वहाँ पर गिरते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं स्नोफॉल कहते हैं. उस चीज़ को हम क्या कहते हैं स्नोफॉल कहते हैं. लेकिन ये ज़्यादा करके कौन से एरिया में होता है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उसका उत्तराखंड हो गया, ये बड़े बड़े रीजन्स जो है जहाँ पे स्नो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स है, वहाँ ये स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है. स्नो When the temperature in the atmosphere fall below the freezing point, the water vapors directly convert into the snowflakes, and this is called as a sublimation. इसको हम क्या कहते हैं? Sublimation कहते हैं. Sublimation क्यों कहते हैं इसको अंडरस्टैंड करो. यहाँ पे एक चीज़ कहा गया कि जब
पानी की मात्रा यानी जो वाटर है वो उसका जो अमाउंट है, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाए यानी बिलो फॉल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, यानी 0 डिग्री के नीचे चला जाएगा, तो वो चीज़ किस में डायरेक्टली वाटर वेपर जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके स्नो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन यानी स्नोफॉल प्रोसेस। Here the water vapor in the form of gas transform into the solid snow and precipitation in the form of solid particle of snow is known as an snowfall। अब जब ये precipitation यानी ये जब बादल में से गिरता है और ये लिक्विड फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्नो फ्लेक्स बन जाते हुए स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्नोफॉल। In the higher latitudinal and the temperate region, snowfall occur at the mean sea level, while in the tropical areas, snowfall occur at the places located higher than the snow line altitude। मतलब क्या होता है, एक लंबे ऊंचाई इलाके पे या फिर एक एकदम बर्फीले इलाके में, चाहे वहाँ पे समुंदर भी हो तो भी वहाँ पे क्या चीज़ें होगा, एल्टीट्यूड वाइज या फिर हायर लैटिट्यूडनल वाइज। आपको मालूम है अर्थ का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम किस में आते हैं, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। ट्रॉपिक के बाद आता है टॉरिड जोन, उसके बाद आता है आपका फ्रीजिड जोन। तो उस हिसाब से हम ट्रॉपिकल जोन में, इसके लिए हमारे यहाँ पे स्नोफॉल होती है लेकिन एल्टीट्यूड पे होगा, हाइट के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप एरिया देखें, रशिया हो गया, चाइना का अपर पार्ट हो गया, तो वहाँ पे बर्फ होता ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एल्टीट्यूड नहीं भी हो लेकिन वो टॉरिड जोन यानी फ्रीजिड जोन के नज़दीक में आता है, इसके लिए वहाँ पे हमेशा बर्फ गिरती रहती है। तो इस हिसाब से याद रखना, या तो लैटिट्यूडनल वाइज आप फ्रीजिड जोन के नज़दीक होने चाहिए या एल्टीट्यूड वाइज यानी हाइट वाइज आप ऊपर जाओगे तो उतना ही ज़्यादा आपको ठंडी वाला एरिया मतलब ठंडी आपको फील ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट वन, एज अ स्नो इन दी As the snow in the solid form, it does not flow like a water. Layer of snow get deposited when the snow accumulates on the large scale. Then the transport and communication system of that area also collapse, and people living in those regions have to protect themselves from the frostbite. And when the snow melts, the region gets the water. अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे अगर जिस एरिया में स्नो ज़्यादा पड़ती हो वहाँ वाटर जैसा पानी क्या होता है, बारिश आती है फ्लो होके चला जाता है, उस जगह पे ज़्यादा देर रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ जमा होती रहती है, इससे क्या होता है, डर ये रहता है कि कहीं पे धंसने का, यानी अगर कहीं पे गैप रहेगा तो वहाँ पे लोग अंदर फंस भी जाते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान उन लोग को रखना पड़ता है जहाँ पे ये बर्फीला इलाका रहता है। दूसरा चीज़ कहा गया कि अगर ज़्यादा स्नो डिपॉजिट हो जाए तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम सब बंद हो जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम इसके लिए बंद हो जाता है क्योंकि ज़्यादा ठंडे इलाके में जो नेटवर्क है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके ऊपर बर्फ़ या कुछ जमा हो जाती है टावर के आसपास में, तो उस एरिया से हिसाब से वो रेंज पहुँच नहीं पाती है। और दूसरा ट्रांसपोर्ट इसके लिए बंद हो जाता है क्योंकि रोड के ऊपर भी बर्फ़ जमा हो जाती है, जिसके कारण कोई व्हीकल वहाँ से चल नहीं सकता, वहाँ से गुजर नहीं सकता। इसके लिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्या हो जाता है, कंप्लीटली बंद हो जाता है। उसके बाद कहा गया कि वहाँ के लोग अपने आपको बचाते हैं किस चीज़ से, ठंडी से भी, क्योंकि ज़्यादा बर्फ पड़ने के कारण उनके बॉडी के ऊपर भी चीज़ें असर पड़ सकता है। और एक चीज़ और कहा गया कि यहाँ पे लोग अपने आप को बचाते हैं फ्रॉस्ट बाइट से। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब ये होता है कि बर्फ़ के कारण दबने के कारण या फिर कोई पाँव में लग जाने के कारण, इन सब चीज़ों से वो लोग चीज़ों अपने आप को क्या करते हैं, सेव करते हैं। और इस एरिया में पानी तभी मिल पाता है जब इस एरिया की जो स्नो है यानी इस एरिया की जो बर्फ़ है वो जब पिघल जाएगी, यानी वो अपने आप को क्या कर लेगी, मेल्ट हो जाएगी, तब इस रीजन में क्या आता है, वाटर सप्लाई यानी वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो इस हिसाब से हमने जो फर्स्ट चीज़ पढ़ी आज वो क्या है, हमारे स्नोफॉल के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे कुछ स्नो के बारे में डिटेल दी गई है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अ हेल। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनफॉल। और उसके बाद नेक्स्ट वन आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, फिर आपका आएगा साइक्लोनिक रेनफॉल, और साइक्लोनिक रेनफॉल के बाद आपका नेक्स्ट वन आएगा रेन गेज के बाद इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, एसिड रेन। और इसी हिसाब से हम चैप्टर को करेंगे, धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि स्नोफॉल, जो स्नो के बारे में डिटेल है वो हम आगे की पढ़ते हैं, ठीक है। स्नो कैप माउंटेन एंड द फ्रोजन लेक। फ्रोजन का मतलब क्या होता है, फ्रीज हुआ हुआ लेक, और जब वो धीरे धीरे करके मेल्ट होता है तो उसके अंदर हमको वाटर सप्लाई आराम से मिल जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द आइस एंड द स्नो इन द एरिया लोकेटेड एट द हायर एल्टीट्यूड एंड द हायर लैटिट्यूड्स वेयर द टेम्परेचर्स आर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेसिपिटेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो। स्नो इज अ फ्रेबल एंड ओपैक। स्नो का जो कंडीशंस होता है वो क्या होता है, फ्राइबल एंड ओपेक। ओपेक आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये ज़्यादा क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड ज़्यादा। आइस जो रहता है वो क्या रहता है, ये आइस जो आपका रहेगा वो कैसा रहेगा, मिरर टाइप में रहता है। और स्नो जो रहता है वो ज़्यादा करके क्या रहता है, व्हाइट कलर के, जैसे हम झाग बोलते हैं ना,
पानी के अंदर उस फॉर्मेट में रहता है। तो ये आपको एक डिफरेंस दिखने मिलता है स्नो और आइस के बीच में। दिस स्नो एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। बर्फ क्या होता है एकदम सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर लेयर बना पाता नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द अपर लेयर द लोअर लेयर ऑफ द स्नो बिकम द होमोजीनियस मैसिव एंड द ट्रांसपेरेंट, एंड मैसिव ट्रांसपेरेंट स्नो फॉर्म इन सच अ वे इज कॉल्ड एज आइस। जब ऊपर के लेयर स्नो के ऊपर स्नो के ऊपर स्नो अगर गिरते जाता है तब जाके जो डाउन का लेयर है वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, आइस के फॉर्मेट में, यानी तब जाके वो क्या होता है ट्रांसपेरेंट वे में क्लियर हो जाता है लोअर लेयर जो है सबसे, ठीक है। तो उसी लोअर लेयर को जब वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो बर्फ और स्नो के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द freezing point, a layer of ice forms on the lake surface, and this layer floats on the surface of the reservoir, and this ice is not related to the snowfall directly. कभी कभार क्या होता है जब टेम्परेचर जो है उस एरिया का अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाए यानी माइनस डिग्री में चला जाए तब वहाँ पे जो बर्फ है जो पानी का इलाका है उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी क्या आ जाती है, आइस आ जाती है। देखो स्नो नहीं आती, उसके ऊपर क्या जमा हो जाती है, आइस, यानी वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ना होने के कारण वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसके लिए जो सरफेस है लेक का उसके ऊपर या रिजर्वायर कोई डैम बना हो या कोई रिजर्वायर बना हो उसके ऊपर के जो पानी की लेयर है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए उसको भी हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं, स्नो नहीं। तो यहाँ पे आप अगर पिक्चर देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो इस चीज़ में अगर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि एक ये जो रिजर्वायर है या फिर जो लेक है उसके अंदर बर्फ़ की जो फ्लेक्स, देखो आइस की फ्लेक्स वहाँ पे बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया कि स्नोफॉल प्रोसेस क्या रहता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द हेल स्टॉर्म्स। Welcome my dear students to the social science lecture. In this lecture we will continue with the second part of the 5th chapter, geography. So in the last lecture we have completed the snowfall part of precipitation. Now we will going to understand the word hail. अब देखो हेल का मतलब क्या होता है, अगर आपको हिंदी में अगर इसका मीनिंग जानना है तो आपने सुना रहेगा कि ओले पड़ते। ओले मतलब समझते थे कि आइस क्यूब्स जैसे या स्मॉल राउंड आइस बॉल्स जैसे ओले गिरने चालू हो जाते हैं। मतलब बारिश के अंदर आपको ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा हीट होने के कारण वो ओले गिर जाते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हेल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। When there is a lot of heat on the earth's surface, the upward air flow blows at the greater speed, and because of this upward flow the temperature of air reduces and the condensation of water vapor takes place, and dark clouds were formed. Because of the upward movement of the air, these water droplets go to the higher altitude, and here the solidification of this droplet occur and hailstorms were formed. अब इसका मीनिंग समझो। देखो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन जैसे जैसे हीट होते जाएगा क्लाउड ऊपर चला जाता है ना, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हाइट यानी एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड का ज्योग्राफी में मीनिंग क्या होता है, हाइट। हाइट मतलब बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद वो चीज़ें वाटर वेपर जो उसका कंडेंसेशन यानी उसका वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म से होते हुए वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, और जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर ड्रॉपलेट्स की जगह पे एक राउंड आइस बॉल के जैसे नीचे गिरता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हेल स्टॉर्म्स कहते हैं। एंड हियर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट अकर एंड हेल स्टोन्स वर फॉर्म्ड, छोटे छोटे कंकड़ जैसे बनना चालू हो जाते बर्फ के, और वो जब गिरते तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हेल स्टॉर्म्स। और हेल स्टॉर्म्स का हिंदी में मैंने आपको अभी मीनिंग बताया कि हिंदी में उसका मीनिंग क्या होता है, ओले पड़ना। हेल स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है, ओले गिरना। नेक्स्ट वन, as the hailstones are heavy they fall towards the ground, but because of the frequent upward flow of air they are repeatedly taken upwards, and here a new layer of snow encapsulates the hail, and this happened quite a few times, and hence the concentric layer are formed while the hail grow in the size, and this big heavy hailstone fall rapidly to the ground because of the gravity, and we call the precipitation of these types as an hail shower. And because of the hail crops may destroyed and loss of the life and property may also occur.
अब इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि जो स्टार्टिंग में जो छोटे हेल स्टॉर्म्स आते हैं वो पिघल कर वापस से देखो, आपने मैंने अभी बताया यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई ज़्यादा करके ये रहता है, हॉट रहता है, तो इसके वजह से वो वापस से क्या होता है, इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे कंडेंसेशन जो है वाटर वेपर का कंडेंसेशन यानी जो बर्फ में कन्वर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और स्टार्टिंग में जो हेल स्टॉर्म्स आते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन ये जब कंटिन्यू शावर चालू रहता है तो जिसमें हेल स्टॉर्म्स की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है ये जो हेल स्टॉर्म्स आते हैं जिसके कारण लाइफ ऑफ क्रॉप जो है, क्रॉप की जो फसल जो यहाँ पे जहाँ पे फसलें उगाई जाती है ये फसलें खराब हो जाती है। और इससे ज़्यादा ये भी होता है कि कभी कभार लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी होता है। गांव में कहीं पे कच्चे मकान हो और जिसके ऊपर मतलब जैसे एग्जांपल है पतरे के बने हो या इस चीज़ के बने हो, तो उनके ऊपर वो चीज़ें क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जो ये हेल स्टॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है और उसके कारण वो खराब हो जाता है। कभी कभी इंसान के ऊपर जोर से गिरना चालू हो जाए जिसके कारण उसको सर के ऊपर मार लग सकती है या फिर एक एग्जाम्पल पीठ पे मार लगने के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें बिकॉज ऑफ हेल्स क्रॉप में ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में ऑल्सो अकर्स। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हेल स्टॉर्म जो है वो स्नोफॉल के जैसा सेफ होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखो यहाँ पे, hail occur in the summer in India and Africa and in some part of Southeast Asia. Hails do not occur in the equatorial areas because of the heat in the atmosphere. Hail do not occur in the cold zone because of the lack of upward flow. देखो ना एकदम गर्म इलाके में होता है ना एकदम ठंडे इलाके में होता है, ये मीडियम जोन का जो क्लाइमेट होता है उस एरिया में ज़्यादा करके अकर होता है। और ये इंडिया के अंदर मोस्टली समर सीजन में होता है। समर सीजन में ना डेजर्ट में नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया हो या फिर एक एग्जाम्पल है आपका महाराष्ट्र रीजन हो, गुजरात हो, राजस्थान का सदर्न राजस्थान हो, ये वाले पार्ट में ज़्यादा करके आपको हेल स्टॉर्म्स देखने मिलता है। अब उसके बाद देखो एक आपको एक प्रोसेस है जो आपको घर पे ट्राई भी कर सकते हो अगर, लेकिन प्लीज़ आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। तो जब भी आप ये चीज़ ट्राई करें तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करें। लेट अस मेक रेन। अब देखो ये प्रोसेस कैसा है कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि रेन जो है, बारिश जो है किस तरीके से बनती है। देखो, गैदर द फॉलोइंग मटेरियल अ वर्टिकल ग्लास कंटेनर विद अ मेटल लीड। अगर ये आप ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन आप इसका नेट पे वीडियो यूट्यूब पे आ जाके आप वीडियो भी देख सकते हो, तो वीडियो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है ना। गैदर द मटेरियल अ वर्टिकल ग्लास कंटेनर विद अ मेटल लीड, नेल, हैमर, हॉट वाटर, आइस क्यूब्स एंड द हैंडफुल ऑफ सॉल्ट। नमक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे समुद्र के पानी के अंदर नमक की मात्रा होती है, इसके लिए उसके कारण ये भी बहुत बड़ा प्रोसेस है जो रेनफॉल के अंदर यूजफुल होता है। फर्स्ट टेक द कंटेनर विद द मेटल लीड। मेटल लीड का मतलब होता है कवर। रिमूव द लीड, हिट द लीड ऑन द अपर साइड एंड नंबर ऑफ पॉइंट विद द नेल एंड द हैमर। टेक केयर दैट लीड डज नॉट गेट अ होल्स बिकॉज ऑफ दिस। फिल 1/3 ऑफ द कंटेनर विद द स्टीम वाटर, नॉट बॉइल्ड वाटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद नाउ पुल द लीड ऑन द कंटेनर एंड क्लोज इट टाइटली। टेक द केयर ऑफ द स्टीम इन द कंटेनर शुड नॉट गो आउट। ऑन द लीड पुट आइस, लीड के ऊपर ढक्कन के ऊपर उसके ऊपर क्या रख दो, आइस क्यूब्स, हैंडफुल ऑफ रॉक सॉल्ट एंड द लिटिल वाटर। नाउ ऑब्जर्व द कंटेनर एंड एक्सपीरियंस द रेन। नाउ इट विल टेक अ, देखो स्टीम वाटर का मतलब क्या होता है, ये टेम्परेचर है। स्टीम वाटर जो वो चीज़ें क्या है, आपकी टेम्परेचर जो आपके अर्थ के यानी आपके सराउंडिंग में जो आपको टेम्परेचर मिलता है वो स्टीम वाटर का काम करेगा। और ये जो आइस क्यूब्स और जो नमक है ये आपका समुद्र के पानी के जैसा या फिर और एग्जांपल फ्रिजिड जोन के जो पानी है वहाँ के इसके हिसाब से आपको बताया गया है। जैसे टेम्परेचर हीट देगा नीचे से, यानी आपको अर्थ जो हीट देगा जिससे वाटर क्या होता है, इवेपोरेशन होगा। और उससे आप देखेंगे कि वाटर के जो डाउन साइड में जो है लीड के जब ये आइस क्यूब होते हैं उसके अंदर से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो डाउन गिरते हुए आप उसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ के हिसाब से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वाटर रेनफॉल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेनर। अभी ये जो एक्सपीरियंस किया इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो। As the vapor in the container is light, it travel upward, and as the lid is tightly closed, the vapor cannot escape. And because of this ice cubes above the lid, condensation of water vapor occurs. Condensation का मतलब क्लाउड बनना चालू होगा, क्योंकि ऊपर से ठंडा इलाका है। आपको मालूम है जैसे हाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ठंडा इलाका मिलता है। इसके लिए now consequently the water droplets form the water vapor accumulate on the inner side of the lid, and because of the punches on the lid, this droplet gather together and fall as a drops. And during the rainfall, similar process happen in the atmosphere on the large scale.
वहाँ पे ऊपर से हैमर में हिट किया तो अलग अलग जगह पे ऐसे डाउनफॉल, तो वो वाटर वेपर एक जगह पे इकट्ठा होंगे और वो इकट्ठा होने के बाद वहाँ से वो ड्रॉप कन्वर्ट होकर वापस नीचे उसी कंटेनर के अंदर गिरेंगे। इसी प्रोसेस को लोग क्या कहते हैं, रेनफॉल। एंड बिकॉज ऑफ द पंचेस ऑन द लीड दिस ड्रॉपलेट गैदर टुगेदर एंड फॉल ऑन द एज अ ड्रॉप एंड ड्यूरिंग द रेनफॉल सिमिलर प्रोसेस हैपन इन द एटमॉस्फेयर ऑन द लार्ज स्केल। नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेनफॉल। अब यहाँ पे रेनफॉल क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और रेनफॉल के अंदर बहुत सी वैरायटी है, जैसे कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। साइक्लोनिक रेनफॉल, फिर लास्ट में आएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशंस और कैसे रेनफॉल मापा जाता है कि रेनफॉल आज कितना हुआ या इस एरिया में कितना मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल था। ये सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव गोइंग टू द रेनफॉल। What is the rainfall? So before going to start with the rainfall, I will once again I will revise the process of the hailstorm. hailstorm का मतलब क्या होता है, ज़्यादा करके समर एरिया में होता, समर रीजन में सीजन में होता है इंडिया के अंदर, और इसके अंदर जो हीट है वो ज़्यादा करके सरफेस अपवर्ड एयर ब्लो होता है, और जिसके कारण ये हाइट पे जाने के बाद, एल्टीट्यूड में जाने के बाद वो जो वाटर वेपर है वो क्लाउड में किसमें जाके वाटर ड्रॉपलेट्स जो हो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके आइस स्टोन्स में से। इसके लिए जब वो आइस स्टोन्स एज एन हेल स्टॉर्म जब नीचे गिरते हैं तो उसकी शावर जो स्टार्टिंग में आते हैं वो बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं, और जो बाद में आते हैं वो बिग इन साइज होता है, जिसके कारण क्रॉप फेलियर भी हो सकता है और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी हो सकता है। And second thing, the hailstorm mostly occur in India, mainly in the summer season, and in the India, Africa and some part of the Southeast Asia, ये ज़्यादा करके समर सीजन में होता है। और हेलस्टॉर्म ना ही इक्वेटोरियल रीजन में होगा, इक्वेटर मतलब है जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ नहीं हो सकता, और ना ही आपका ज़्यादा करके फ्रिजिड जोन में होगा। क्यों? क्योंकि रीजन वहाँ पे है कि ना ही ज़्यादा गर्मी के एरिया में हो सकता है, ना ही ज़्यादा ठंडा। इट विल अकर मोस्टली इन द मिड रीजन ऑफ टेम्परेचर, मिड जोन ऑफ टेम्परेचर जो रहेगा उस एरिया में ज़्यादा करके होता है। सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हेलस्टॉर्म और आपका स्नोफॉल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेनफॉल। एंड देन रेनफॉल देर आर टोटल 3 टाइप्स, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द व्हाट इज द रेन गेज मैटर, एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड आवर लेक्चर गोइंग टू बी कंप्लीट. So please understand this part and we will meet in the next lecture.